ओके, सो होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक करेंगे जिसको हम बोलते हैं टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप, और उसकी एप्लीकेशन होती है डायरेक्ट इसमें, जिसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो लेट अस फर्स्ट डू टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। When we consider a torque rectangular loop PQRS, right, and which is placed in uniform magnetic field B. Let's say the smaller side is B and bigger side is L. Because bigger side having current I also, this bigger side is placed along the direction of applied field, so forces experienced by these two would be cancelled out or zero. So we are left with this smaller segment of the loop, PS and RQ. This PS having width B and makes angle theta with the magnetic field. So this perpendicular side, if we complete a triangle, will be B sine theta. And if you apply left hand rule, we'll find that the two forces acting on these smaller arms are F1 and F2, which are equal and opposite. And so a torque acts on it. Now, when we talk about the torque acting on it, then what we write formula for torque? Torque is basically magnitude of either force, right, into perpendicular distance. So torque or magnitude of either force is Bell. And when it comes to perpendicular distance, it is B sine theta. We have this L and B. So length and breadth of this conducting loop, it can be area. So we write it BIA sine theta. And if we can consider for n turns in the coil or loop, we write torque as BINA sine theta, and this is our formula. Torque as we may read like bina sine theta, right? Then we apply this in case of moving coil galvanometer. So very significant. Most of the time you get this question in CBSE. So moving coil galvanometer. हम जानते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या होती है? Such a device which is used to detect the presence of electric current in a circuit. मतलब ये एमीटर से थोड़ी अलग होती है. Ammeter is used to record the current and galvanometer is used to detect the presence of current. तो एक लाइन इंट्रो दे दी, फिर डायग्राम. जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो let me clear this and then we'll plot the diagram, draw the diagram. So basically
In NCERT, diagram is not very clear. So let me plot a little different diagram, which is simple and clear one, clear also. ये क्या हो सकती है देखते हैं. Generally we take a fixed support, a rigid support. With this is the mirror, and then from mirror, this is something rectangular loop. Lower end is a spring. Now this we connect. First we keep, which is magnets. The two magnets in this we have, this is the mirror, and these wavy lines are, this is the ferrite core. सॉफ्ट आयरन की कोर डाल देते हैं, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर क्रिएट होगी. ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स है, ये मेन टर्मिनल जैसी है हमारी, और ये दोनों दूसरे दो टर्मिनल है, मतलब स्विच जैसी, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट आ जाएगी. ये दिख रहा है, दिस इज स्प्रिंग. एंड ये जो वायर होती है, स्पेशल वायर होती है, उसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज. फॉस्फर ब्रॉन्ज, BRONZE. क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस है ये. अब इसमें व्हेन दिस टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, तो इसमें करंट आ जाएगी. वायर से कनेक्टिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हाई है. तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क. और हम जानते हैं, अभी अभी किया था, कि टॉर्क इज गिवन बाय बिना साइन थीटा, राइट. और थीटा की वैल्यू मैक्स ले लेते हैं, तो साइन 90 would be 1. Therefore we write torque as बिना, BINA फर्स्ट. नाउ ये टॉर्क जितनी इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं, तो स्प्रिंग के कारण से इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क अपने आप आ जाती है, जो इसको वापस अपने स्टेट में लाने की कोशिश करती है. तो उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क. एंड रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ डैश is directly proportional to the angle of deflection, let's say phi, क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यहाँ इसको phi ले लेते हैं. एंड so we write tau dash as k phi second, which means technically tau and tau dash are same. और अगर सेम है तो we write like बिना as k phi, and therefore I becomes k phi over BNA. अब यहाँ पे जो k अपॉन BNA है, इसको भी कांस्टेंट जैसा ट्रीट करते हैं, जिसको हम G बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. देन वी राइट I as G phi, right? So this becomes the general formula,
एंड एक्सप्लेनेशन. व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन, तो मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ बच्चे ना डायग्राम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते रहते हैं. फिजिक्स में डायग्राम को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. हमें मेन मैथमेटिकल वर्किंग करनी है प्रिंसिपल को हाईलाइट करते हुए. तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, राइट. अब इसमें इसके दो टेल जैसे होते हैं. एक टेल को हम बोलते हैं, फर्स्ट को करंट सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी को जैसा नेम है, मतलब करंट से कितना सेंसिटिव है ये डिवाइस. इसकी कोई सिंबल नहीं होती है. कहते हैं इट इज मेजर्ड एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन एंगल हम लोगों ने फाई लिया है, मतलब प्लेन से जो डिफ्लेक्ट हो रही. तो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाई टू द पर यूनिट चेंज इन करंट. तो करंट सेंसिटिविटी इज फाई अपॉन आई. और अगर आई हम यहां से ये वैल्यू ले लें, तो दिस इज फाई एंड आई इज k phi upon bna. तो k phi और bna will go up. तो phi is cancelled and therefore cs को हम लिख लेते हैं bna upon k. तो ये इनकी फॉर्मूला हो गई. ओल्ड एनसीईआरटी में 6.10 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल इसी पे बेस है, जो सीबीएसई में भी आया हुआ है. एंड देन नेक्स्ट वन इज, वी कॉल इट वोल्टेज सेंसिटिविटी. वीएस चाहे तो हम लिख सकते हैं. अब जैसे करंट के सेंस में था, वैसे ही वोल्टेज की, वोल्टेज से कितनी सेंसिटिव है डिवाइस. तो इसको कहते हैं इट इज मेजर्ड एज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन टू द पर यूनिट चेंज इन वोल्टेज. अब हम जानते हैं वोल्टेज पोटेंशियल को ओम्स लॉ से हम आई आर लिखते हैं. तो V कैन बी आई आर, एंड सो फाई अपॉन आर, और I के बदले फिर से यहां से K फाई अपॉन बी एन ए. तो K फाई एंड बी एन ए विल गो अप. तो phi is cancelled and therefore voltage sensitivity becomes BNA upon K into R. तो ये voltage sensitivity की हो गई formula. So this is related to the moving coil galvanometer and everything. अब इसमें हम चाहें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, गैल्वेनोमीटर की सिंबल होती है ये, इनटू एमीटर फर्स्ट. इसके लिए कहते हैं कि we need to have shunt. Shunt is a low resistance, right, connected in parallel is called shunt. मतलब रेजिस्टेंस ही है, ये कोई अलग सी ऐसी चीज नहीं है. मतलब अगर हम सर्किट बनाए तो वी कैन हैव दिस गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ पैरेलल में एक हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देनी है. इनका नेम क्या है? तो नेम इज शंट, एस. और इसमें अगर हम और चीजें ढूंढें
तो दिस इज द मेन करंट, इनके साथ जो चल रही है वो क्या है, IG, और इधर कितनी करंट आएगी, तो I माइनस IG, राइट, एंड दिस होल एक्ट्स लाइक एमीटर। सिंपल, क्योंकि ये G और S पैरेलल में है, सिंस G and S आर इन पैरेलल, और हम पैरेलल में जानते हैं कि वोल्टेज सेम होती है, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस G वुड बी वोल्टेज अक्रॉस शंट। तो वोल्टेज के लिए क्या लिखते हैं हम, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर में करंट हमने लिया IG, तो करंट और इनके रेजिस्टेंस का नाम G लिख लेते हैं, और शंट के साथ करंट है I माइनस IG, और इनके रेजिस्टेंस का नाम S है, इसलिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं शंट की, S becomes IgG divided by I minus IG, and this becomes our working formula for shunt required to convert a galvanometer into ammeter, right? So I am able to convey. अब इसी का सेकेंड सेगमेंट हम कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं conversion of galvanometer into voltmeter, right? So how we can convert it into voltmeter? Let's see. Conversion of galvanometer into voltmeter. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हम जानते हैं वोल्टमीटर ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हाई रेजिस्टेंस या शंट हमने कनेक्ट कर देना है गैल्वेनोमीटर के साथ में इन सीरीज। तो दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज दिस। तो ये इंटायर एक्ट्स लाइक वोल्टमीटर, एंड मेन करंट तो आई है, दिस विल गो लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हम V की बात करें तो V विल बी S प्लस G, ये दोनों तो सीरीज में है, और इनके साथ करंट है I, which means S plus G would be V upon I. Therefore, या कन्वीनियंटली हम IG नेम लिख रहे हैं तो IG लिख लेते हैं, एंड therefore शंट we want तो V upon IG minus S, sorry G, right? V upon IG and this G will come RHS, so this will be G, and this becomes our formula, right? For shunt required to convert galvanometer into ammeter, and shunt required to convert galvanometer into voltmeter. So, and this ends this chapter, moving charges or magnetic effects of current. Thank you so much. May God bless you. And request you to hit like button, share it with your friends, subscribe it, and do write your comments.